सुप्रभात बच्चों, आज हम शिविर की शुरुआत गायत्री मंत्र और मंगल कामना से करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो दयावान, सब पर कृपा करो भगवान, सबको दो वेदों का ज्ञान, सबको दो वेदों का ज्ञान, सबका सब विधि हो कल्याण। Dear parents and students, it is a matter of great pride for all of us to be a part of this week-long virtual Charitra Nirman Shivir, which is being organized from 14th June to 21st June by DAV Centenary Public School, Tohana, under the able guidance and leadership of our worthy principal, Dr. Mala Upadhyay. On this occasion, on behalf of the entire family of DAV Tohana, I would like to extend my heartiest welcome to one and all. As the name suggests, the main focus of this Charitra Nirman Shivir is character building. A school is not just about teaching and learning concepts. It is a place where foundation can be built for upstanding adults. The real purpose of education is to develop knowledge, skills, personality, and above all, character. It is rightly said, watch your thoughts, they lead to attitudes. Watch your attitudes, they lead to words. Watch your words, they lead to actions. Watch your actions, they lead to habits. Watch your habits, they form your character. Watch your character, it determines your destiny. Thus we see that character plays an important role in shaping and molding the personality of a person. Therefore, for a better future of our children, we have to invest today in character building. Character building experiences takes us out from our comfort zones and force us to dig deep to find new resources from within ourselves. This virtual character building program is just a small effort from our side to inculcate moral values among our children. As you all know that moral values play an important role in igniting the minds of the students. This week-long Shivir is going to keep our children, or I can say even our parents also, engaged. The inspirational discourses and bhajans are not only going to entertain everybody, but they are also going to generate positive energy among our children so as to make them more capable and self-sufficient in life. Now, I would like to brief you about
our week-long Shivir. We are going to have various sessions on different topics like personality development, importance of yoga in our life, health and nutrition, role of Arya Samaj in our life, life of Swami Dayanand Saraswati, our inner soul and beauty, etc. Mrs. Sunita Chaudhary, our social science teacher, Mrs. Rita, our Dharam Shikshak and Sanskrit teacher, Mr. Yashpal, our physical education teacher, and Mr. Mohinder, our music teacher, are all going to be a part of this Shivir. We are also honored to have some special guests with us. Dr. Meenakshi Khanna, Dr. Anita Lamba, Brahma Kumari Vandana Behan, and Dr. Harish Kumar Yadav are going to share their knowledge and experience with our children and thus enrich them. Last but not the least, a quiz is also going to be organized for our children on the last day of this virtual Shivir. The questions will be based on the 7-day long program. So dear children, do not miss even a single session if you really want to score well in this quiz. All those students who score above 75% will be awarded digital certificates. On the last day, our worthy principal ma'am is also going to shower her blessings on all of us. In the end, I would like to request our worthy parents to encourage and motivate their children to attend this Shivir so that they can incorporate in their lives all that they will learn from this Shivir. Thank you. Pad pad shri
आदर व सम्मान के योग्य प्रधानाचार्य, अभिभावक बंधु एवं देश के होनहार प्यारे बच्चों, गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्राचार्य डॉक्टर माला उपाध्याय जी के नेतृत्व में चरित्र निर्माण का आयोजन ऑनलाइन किया जा रहा है। प्यारे बच्चों, जब एक बच्चा विद्यालय में प्रवेश लेता है तो अध्यापक उस नव आगंतुक बच्चे को गायत्री मंत्र ही क्यों सिखाते हैं? क्योंकि गायत्री मंत्र का जाप करने से हमारी बुद्धि का विकास होता है और गायत्री मंत्र में परमात्मा से बुद्धि की मांग की गई है। बुद्धि ही सबसे उत्तम होती है। गायत्री मंत्र का जप किस समय करना चाहिए? प्यारे बच्चों, गायत्री मंत्र का जप प्रातः स्नान करने के बाद तथा रात्रि को सोने से पहले करना अधिक उपयोगी होता है। जप का स्थान किस तरह का होना चाहिए? प्यारे बच्चों, जप का स्थान पवित्र एवं शांत होना चाहिए। इस विधि के अनुसार जप करने से हमारी बुद्धि में विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। गायत्री मंत्र का जप करते हुए उपासक को मन में यह भावना रखनी चाहिए कि उस सर्वशक्तिमान परमात्मा की सामर्थ्य से ही मुझे आनंद, ज्ञान, शक्ति, सत्य की प्राप्ति हो रही है और उस परमात्मा के तेज के सामर्थ्य से ही मेरे अज्ञान, रोग, दुख, भय, चिंता आदि दूर हो रहे हैं। गायत्री मंत्र को प्यारे बच्चों अनेक नामों से पुकारा जाता है। सावित्री मंत्र, महामंत्र, गुरु मंत्र, वेद माता आदि। गायत्री मंत्र के जप के प्रभाव से ही स्वामी विरजानंद जी की बुद्धि में इतना निखार हुआ कि वे स्वामी दयानंद जैसे शिष्य को भी देश और जाति के लिए तैयार कर पाए। प्यारे बच्चों, बुद्धि बल ही सबसे उत्तम होता है। हम अपने सब काम बुद्धि से ही करते हैं। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि का बल होता है वही बलवान होता है। कहानी का शीर्षक है प्यारे बच्चों, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। इस विषय में मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। किसी जंगल में भासुरक नाम का शेर रहता था। वह अधिक शक्तिशाली था। वह वन के जानवरों को मारकर खाता था। एक दिन सभी जानवर इकट्ठे होकर शेर के पास गए और कहा कि हम में से एक पशु रोज आपके पास आ जाएगा। आप एक पशु को खाकर अपनी भूख मिटा सकते हो। शेर ने स्वीकार किया और शेर ने कहा, जिस दिन एक पशु भी नहीं आया तो मैं वन के सभी पशुओं को मार दूंगा। सभी पशुओं ने कहा, ठीक है। हर रोज एक पशु शेर के पास जाता और शेर उस पशु को खाकर अपनी भूख मिटा लेता था। एक बार प्यारे बच्चों, एक खरगोश की बारी आई। वो न चाहते हुए भी शेर के पास चल पड़ा। रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई दिया। कुएं में खरगोश ने अपनी परछाई देखी। परछाई देखकर वह बहुत खुश हुआ और उसने मन ही मन सोचा कि मैं शेर को इतना गुस्सा दिलाऊंगा कि वो कुएं में गिर जाएगा और मर जाएगा। उसने शेर को मारने का उपाय सोच लिया। वह देरी से शेर के पास पहुंचा। जब वह शेर के पास गया तो शेर ने देरी से आने का कारण पूछा। तो खरगोश ने कहा, स्वामी, मुझे रास्ते में दूसरा शेर मिल गया था और वो कह रहा था कि आप कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा, मैं भासुरक नाम के शेर के पास, अपने स्वामी के पास उनके भोजन के लिए जा रहा हूँ। तो दूसरे शेर ने कहा, मैं वन का राजा हूँ, यह जंगल मेरा है, सभी पशुओं को मेरी बात मान लेनी चाहिए। भासुरक तो चोर है। इससे भासुरक को क्रोध आ गया और वो कहता है, वो शेर, दूसरा शेर कहाँ है? जहाँ वो दूसरा शेर है मुझे वहाँ ले चलो। खरगोश ने कहा, मैं ले तो जाऊँगा, परंतु वो दूसरा शेर अधिक शक्तिशाली है। तो भासुरक ने कहा, कोई बात नहीं। खरगोश के पीछे शेर चलना शुरू कर देता है। कुएं के पास पहुंचकर शेर ने कहा कि दूसरा शेर कहाँ है? तो खरगोश ने कहा कि स्वामी, आपसे डरकर वह छिप गया है गुफा के अंदर। शेर जब कुएं में अपनी परछाई देखता है तो वो सोचता
परछाई देखकर सोचता है कि यह दूसरा शेर है और वह उस दहाड़ना शुरू कर देता है, तो उसे कुएं से वैसी ही आवाज़ सुनाई देती है। तो वह दूसरे शेर को मारने के लिए कुएं में छलांग लगा देता है और मर जाता है। इस प्रकार एक खरगोश ने बुद्धि के बल से इतने बलवान शेर को मार दिया। इसलिए प्यारे बच्चों, बुद्धि बल ही सबसे उत्तम है। प्यारे बच्चों, मनुस्मृति में लिखा है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो प्यारे बच्चों अभिवादनशील है, बड़ों को प्रणाम करता है, उसकी 4 चीज़ें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए प्यारे बच्चों, बड़ों को आप प्रणाम करना चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए। हमारे साहित्य में लिखा है, माता को ही तीर्थ कहा गया है, क्योंकि माता के समान कोई तीर्थ नहीं, माता के समान कोई रक्षक नहीं, और माता के समान प्यारे बच्चों कोई सरोवर नहीं। माता को तीर्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि माता की सेवा करने वाला तर जाता है। इसी प्रकार पिता, गुरु, विद्वान, महात्माओं को भी तीर्थ कहा गया है। मनुस्मृति में इस प्रकार से लिखा है कि हमें बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए। धर्म ग्रंथों में लिखा है कि वृतम यत्नेन संरक्षेत, वित्तम एति च याति च एशिणो विदतः शिणो वृततः तु हतोहत है, वृतम यत्नेन संरक्षित। प्यारे बच्चों, वृतम होता है चरित्र और वित्तम होता है धन। वृतम यत्नेन संरक्षित, हमें चरित्र की यत्न से रक्षा करनी चाहिए। वित्तम एति च याति च, वित्तम धन तो आता है और चला जाता है। वित्ततः क्षीणो, धन के नष्ट होने से मनुष्य नष्ट नहीं होता, परंतु वृत्ततः तु हतोहत है, चरित्र के नष्ट होने से मनुष्य नष्ट हो जाता है। प्यारे बच्चों, चरित्र धन ही वास्तव में सच्चा धन है। किसी ने सत्य ही कहा है, धन गया तो कुछ नहीं गया, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, परंतु चरित्र गया तो सब कुछ गया, चरित्र गया तो सब कुछ गया। तो हमें प्यारे बच्चों चरित्र की यत्न से रक्षा करनी चाहिए। परंतु आज के युग में तो धन की महिमा गाई जाती है। धन को तो चोर भी चुरा सकता है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, परंतु चरित्र रूपी धन जो है वो बढ़ता है। सदाचारी मनुष्य चारित्रिक गुणों से युक्त होता है। परोपकार, सादगी, संयम, सहनशीलता आदि गुण उसके चरित्र के गुणों को और बढ़ाते हैं और वह सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास रखता है। इसलिए प्यारे बच्चों, हमें चरित्र की यत्न से रक्षा करनी चाहिए। धर्म ग्रंथों में लिखा गया है, विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वाद धनम आपनोति, धनाद धर्मम ततः सुखम। विद्या ददाति विनयम, विद्या हमें विनय प्रदान करती है। विनयात याति पात्रताम, विनय से हमें पात्रता प्राप्त होती है, योग्यता प्राप्त होती है। योग्यता से प्यारे बच्चों धन प्राप्त होता है, धन से धर्म होता है और धर्म से प्यारे बच्चों सुख प्राप्त होता है। तो हमें मन लगाकर पढ़ना चाहिए। और हम भिन्न भिन्न कार्यों से धन कमाते हैं, हम भिन्न भिन्न कार्यों से धन कमाते हैं क्योंकि हमारे अंदर पात्रता है, योग्यता है, और हम योग्यता के आधार पर धन कमाते हैं और ईमानदारी से कमाते हैं। जब हमारे पास ईमानदारी का धन होता है तो हमारे घर में सुख संपन्नता का वास होता है। ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म। ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म। ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। प्यारे बच्चों, ये शाम जिसके पास
न विद्या है, जो न तप करता है न दान करता है, जिसके पास न ज्ञान है न गुण है न शील स्वभाव है। वे मनुष्य लोक में, मर्त्यलोक के मनुष्य लोक में भूमि पर भार भूताहा भार बने हुए हैं, मनुष्य रूपण और मनुष्य आदि पशुओं की तरह विचरण करते हैं, घूमते हैं। न चोरहार्यम न राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, वये कृते वर्धते एव नित्यम, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। न चोरहार्यम न राजहार्यम, इस विद्याधन को न तो चोर चुरा सकते हैं, न राजा ले सकता है, न भ्रातृभाज्यम न भाई बांट सकते हैं, और न ही भार वाला होता है। प्यारे बच्चों, व्यय कृते खर्च करने पर यह विद्या रूपी धन अधिक बढ़ता है, और व्यय कृते वर्धते एव नित्यम, विद्याधनम, विद्या रूपी धन जो है सर्व धनम प्रधानम, सभी धनों में से प्रधान है। विद्या धन जो है सबसे श्रेष्ठ है। विद्या जो है प्यारे बच्चों माता के समान रक्षा करती है, पिता के समान हित कार्य, हित के काम में लगाती है। राजा तो केवल अपने देश में ही पूजा जाता है, परंतु विद्वान मनुष्य सब जगह पूजा जाता है। केवल सिर के बाल सफ़ेद होने से ही कोई बड़ा नहीं माना जाता। बड़ा और विद्वान तो वह माना जाता है जो पढ़ा लिखा होता है। अगर कम आयु का भी कोई पढ़ा लिखा है तो वो विद्वान माना जाएगा, बड़ा माना जाएगा, श्रेष्ठ माना जाएगा। तो प्यारे बच्चों, शिक्षा जरूरी है। शिक्षा हमारे जीवन मूल्यों की रक्षा करती है। शिक्षा हमें अनुशासन सिखाती है। जितना व्यक्ति सहनशील होता है, जितना पढ़ा लिखा होता है उतना ही सहनशील होता है, उसे क्रोध नहीं आता। क्योंकि क्रोध ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध से मनुष्य में सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती और बुद्धि का नाश हो जाता है। प्यारे बच्चों, मैं आपको महात्मा विठोबा जी की एक कहानी सुनाती हूँ, जिसका शीर्षक है क्रोधेन कार्यम न सिद्ध्यति, कभी भी क्रोध से काम सिद्ध नहीं होता। महात्मा विठोबा जी किसी नगर में कुटिया बनाकर रहते थे। उनके पास में एक यात्री भी रहता था। अनेक लोग दर्शन के इच्छुक महात्मा जी के पास आते थे और वो महात्मा जी को भोजन के लिए आमंत्रित करते थे। एक बार वह यात्री भी महात्मा जी के पास आया और भोजन के लिए आमंत्रित किया। महात्मा जी ने उनका निवेदन स्वीकार किया। जब महात्मा जी भोजन के लिए नागरिक के घर गए तो वह नागरिक दरवाज़ा बंद करके कहीं गया हुआ था। महात्मा जी भूखे ही कुटिया में आ गए और रात को भूखे ही सो गए। एक बार फिर उसी नागरिक ने महात्मा जी को भोजन के लिए आमंत्रित किया। महात्मा जी ने निवेदन स्वीकार किया। जब महात्मा जी भोजन करने गए तो वह यात्री कहीं गया हुआ था और वो अतिथि के आने की बात सुनकर भी घर नहीं आया। तो महात्मा जी कुटिया में आ गए और भूखे ही सो गए। 1 महीने बाद वही यात्री महात्मा जी को भोजन के लिए बुलाने आया। महात्मा जी ने निवेदन स्वीकार किया तो नागरिक ने कहा, महात्मा जी, मैंने आपका 2 बार अपमान किया है, परंतु आपने मुझे कुछ नहीं कहा। तो महात्मा जी ने कहा, आपने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, यही काफ़ी है। नागरिक ने कहा, अनुशासनहीन को तो महात्मा जी क्रोध से दंड देना चाहिए। तो महात्मा जी ने कहा, क्रोध न करने से, शांति से, सहनशीलता से ही मनुष्य विजय को प्राप्त करता है, क्रोध से नहीं। कहा भी गया है, बैरी को कभी भी वैर से शांत नहीं किया जा सकता। अगर हम किसी को अच्छा व्यक्ति बनाना चाहते हैं तो हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करके, क्रोध न करके ही उसे अच्छा बना सकते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, जीवन में कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए प्यारे बच्चों, अगर आप मनुष्यता को प्राप्त करना चाहते हो, अच्छे इंसान बनना चाहते हो, तो महापुरुषों के उदाहरणों को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। इसके साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति इति ओम।
सभी